तो दो मेन स्टाइल्स हैं, टास्क बिहेवियर या टास्क ओरिएंटेशन एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेशन और रिलेशनशिप बिहेवियर. Task is primarily concerned with achieving the objectives, and relationship is related to making the people comfortable among themselves and also with the company or organizations. अगली slide. जी. There have been many studies about styles approach, लेकिन उनमें से 3 लैंडमार्क स्टडीज हैं. एक ओहायो स्टेट स्टडीज, दूसरी मिशिगन यूनिवर्सिटी की स्टडीज हैं, और तीसरी है ब्लेक एंड माउंटन की स्टडीज. So let's talk about these 3 studies one by one. First of all is Ohio State University studies. ये सबसे पहले वाली स्टडीज हैं जो कि स्टाइल्स अप्रोच से रिलेटेड है, और दिस स्टडी वाज carried out in 1940s. और बेसिकली जो चैंपियन है इन स्टडीज का या लीडर है स्टॉट गिल, उस बंदे का नाम है, रिसर्चर का, फिलोसोफर का. who pointed out to the importance of considering more than leadership traits in leadership research. लीडरशिप ट्रेट से उसने डिविएट करने की कोशिश की और उसके ऊपर बेस करके फिर स्टडीज हुई. और ऑलमोस्ट इसी टाइम फ्रेम में जो मिशिगन स्टेट स्टडीज है वो भी इसी टाइम फ्रेम में हुई, लेकिन दोनों स्टडीज इंडिपेंडेंटली हो रही थी, आपस में इनका कोई कनेक्शन नहीं था, और दोनों को कुछ पता नहीं था कि कोई और भी इस टॉपिक से रिलेटेड स्टडी कर रहा है. और जो तीसरी स्टडी है दैट वाज कैरिड आउट इन 1960s लेट, लेकिन उन्होंने फर्दर एक्सपैंड किया उसको. तो as far as Ohio State studies are concerned, a group of researchers, they thought the results of the studying leadership as a personality trait seemed fruitless and decided to analyze how individuals acted when they were leading a group or an organization. Traits से debate करने की कोशिश की. And this analysis was conducted by having subordinates complete questionnaire about their leaders. जो फॉलोअर्स थे उनको क्वेश्चन दिया जाता था कि वो अपने लीडर के हवाले से फिल करें, और on the questionnaire subordinates had to identify the number of times their leaders engaged in certain types of behavior. And the original questionnaire used in these studies was constructed from a list of more than 1800 items, 1800 questions थे उसमें से, and describing different aspects of leadership behavior. From this long list of items, a questionnaire composed of 150 questions was formulated, and it was known as LBD, Leader Behavior Description Questionnaire. And LBD was given to hundreds of people in educational, military, and other business settings, and the results showed that certain clusters of behaviors were of leaders. 6 years later, Stottgill published a short version of LBDQ, जिसको जिसकी मिट्टी जुटी वर्जन बुक के एंड पे भी मौजूद है, and you can assess your own leadership style by filling up that questionnaire given at the end of this chapter. और इस स्टडी की बेस पे रिसर्चर्स found out that subordinates responses on the questionnaire cluster around 2 general types of leader behavior, और इन क्लस्टर्स को उन्होंने नाम दिया इनिशिएटिंग बिहेवियर. आगे चलेंगे. जी, ये जो LBDQ 12 है, it was
shortened version of the questionnaire, और जो सबॉर्डिनेट्स ने मुख्तलिफ बिहेवियर्स अपने लीडर्स के लिस्ट डाउन किए, they could be combined into two main clusters. One is initiating structure and other one was known as consideration style. Initiating structure behavior और essentially task behavior, जो हमने पहले तो behavior की बात की है, task से मिलता जुलता ये behavior है, including, और इसमें they emphasize organizing work, giving structure to the work context, defining role responsibilities, and scheduling work activities. डिटेल में एक्सप्लेन कर देते थे किसने क्या करना है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल्स हैं, और टारगेट क्या है, उसको किस वक्त किस टाइम फ्रेम में और किन रिसोर्सेज से अचीव करना है, ये सारी डिटेल में उनको ब्रीफ करते हैं और उनको फिर सुपरवाइज करते हैं, सो दैट दे अचीव द असाइंड टास्क और असाइंड गोल्स. और जो दूसरा स्टाइल है कंसंट्रेशन बिहेवियर और कंसंट्रेशन स्टाइल, दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू एसेंशियली related to relationship behavior, जो हमने पहले बात की, and it includes building comradeship, respect, trust, and liking between leaders and performers. Relationship एक दूसरे के साथ comfortable रहने की बात करता है. और ये जो दो लीडरशिप स्टाइल्स हैं, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एंड कंसंट्रेशन, ये they in fact describe four of the सर आवाज नहीं आ रही. जी सर, अब आ रही है. अभी आ रही है? यस सर. अभी आ रही है? यस सर. चलिए, अनफॉर्चुनेट ये सिग्नल्स डिस्टर्ब करते हैं. अच्छा, तो ये दो कोर लीडरशिप स्टाइल्स हैं, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एंड कंसंट्रेशन स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप ओरिएंटेशन. इसमें जो शुरू से ही इनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी इन रिसर्चर्स की कि ये जो दो स्टाइल हैं, they are not 2 points along a single continuum, but as 2 different continua. यानी ऐसे नहीं है कि दो एंड्स हो, एक रिलेशनशिप्स का हो, कंसंट्रेशन का हो और दूसरा इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर का हो. तो अगर कोई बंदा, कोई लीडर कंसंट्रेशन की तरफ ज़्यादा उसका फोकस है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो उस फोकस का उसको कंप्रोमाइज कर रहा है इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर को. या अगर कोई इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर यानी ज़्यादा डिटेल में इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ज़्यादा सुपरवाइज कर रहा है, टारगेट फोर्स को ज़्यादा एम्फसाइज कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कंप्रोमाइज कर रहा है रिलेशनशिप में या कंसंट्रेशन में, बल्कि ये दो इंडिपेंडेंट कंटिन्यू है, दो इंडिपेंडेंट स्केल्स हैं. एक बंदा कंसंट्रेशन में हाई स्कोर उसका हो सकता है और टास्क में भी या इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर में भी उसका हाई स्कोर हो सकता है, या वाइस वर्सा, एक में ज़्यादा दूसरे में कम, दूसरे में ज़्यादा पहले में कम, या दोनों में कम. ये ऐसे हो सकता है. ऐसे नहीं है कि अगर एक में कम होगा तो दूसरे का स्कोर ज़्यादा होगा, दूसरे का ज़्यादा हो, दूसरे का कम होगा तो पहले का कम ज़्यादा होगा. ऐसे नहीं है. ये पॉइंट अंडरस्टैंड कर लिया आप लोगों ने? यस सर. Two independent continuum, not the 2 points along a single continuum. जो अगली स्टडी है मिशिगन स्टेट स्टडीज. आगे चले. यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्टडीज
जब ओहायो स्टेट स्टडीज हो रही थी तो रिसर्चर्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन वर आल्सो exploring leadership behavior, giving special attention to the impact of leader behavior on performance of small groups. And the program of research at Michigan identified two types of leadership behavior: employee orientation and production orientation. जो ओहायो स्टेट की स्टडीज थी उन्होंने इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर और कंसल्टेशन की बात की। यहाँ इन्होंने एम्प्लॉय ओरिएंटेशन और प्रोडक्शन ओरिएंटेशन की बात की है, लेकिन एसेंशियली ये सिमिलर है। एम्प्लॉय ओरिएंटेशन मींस कंसंट्रेशन या रिलेशन और प्रोडक्शन ओरिएंटेशन मींस टास्क या इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर। और लेकिन इनका जो इनिशियली अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि ये दोनों जो है प्रोडक्शन ओरिएंटेशन और एम्प्लॉय ओरिएंटेशन, ये these are the two extreme points of single continuum। यानी अगर एक बंदा एम्प्लॉय ओरिएंटेशन है उसका लीडरशिप स्टाइल, तो वो प्रोडक्शन ओरिएंटेशन नहीं होगा, या उसका स्कोर अगर ज़्यादा होगा एम्प्लॉय ओरिएंटेशन की तरफ, प्रोडक्शन ओरिएंटेशन में उसका स्कोर कम होगा, या एम्प्लॉय में कम होगा तो प्रोडक्शन में ज़्यादा होगा। तो इस तरह वो कहते थे कि ये एक सिंगल कंटिन्यूम है, these are the two ends of single continuum। एक पे फोकस होगा तो दूसरे पे कंप्रोमाइज होगा। लेकिन लेटर ऑन फिर इन्होंने जब मजीद स्टडी किया तो दे आल्सो रीच्ड एट द सेम कंक्लूजन एज ऑफ ओहायो स्टेट, और दे आल्सो अंडरस्टूड कि नहीं, ये दोनों जो स्टाइल्स हैं सिंगल कंटिन्यूम नहीं है, बल्कि दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दे आर द a leader can excel in one leadership style without compromising on the other leadership style। अगर एम्प्लॉय ओरिएंटेशन है, एक लीडर है जो अपने एम्प्लॉइज का बहुत ख्याल रखता है, रिलेशनशिप डेवलप करता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, उनको कंफर्टेबल करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्शन को कंप्रोमाइज कर रहा हो, बल्कि उनका भी वो एम्फसाइज कर सकता है, उनको रिपोर्ट्स दे सकता है, उनको एक्सप्लेन कर सकता है और डिमांड कर सकता है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट स्टडीज हैं लीडरशिप स्टाइल्स के हवाले से, दोनों इंडिपेंडेंटली सेम टाइम फ्रेम में कंडक्ट हुई, और दोनों के रिजल्ट्स जो हैं बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, और दो टर्म्स थोड़ी सी डिफरेंट यूज की हैं, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है उन टर्म्स की या उन टर्म्स की डेफिनेशन है दैट इज ऑलमोस्ट सेम। तीसरी जो स्टडी है ब्लेक एंड मोर्टन्स मैनेजरियल ग्रेड, जी ये is the best known model of managerial behavior in the management grade, and it was published in somewhere 1960s, और फिर इसको काफ़ी दफ़ा इन्होंने रिफाइन किया और दोबारा इसको पब्लिश करते रहे रिफाइंड शेप में। 1991 में भी इनका एक पेपर आया, 64, 78 और 85 वगैरह में भी इन्होंने इसको रिफाइन करके पब्लिश किया। अगली साइड पे है। और इन्होंने जो ग्रिड डेवलप किया, the managerial grid which has been renamed as leadership grid। इनिशियली इन्होंने इसको मैनेजरियल ग्रिड कहा, लेकिन बाद में इसको लीडरशिप ग्रिड कहना शुरू कर दिया। It was designed to explain how leaders help organization to reach their purposes through two factors: concern for production and concern for people. Although these factors are described as leadership orientations in the model, they closely parallel the same as task and relationship styles of
the previous two studies. Concern for production जो है ये हुई टास्क ओरिएंटेशन है, और concern for people जो है that is same as relationship orientation or concentration style. Right. जो इसमें जो ग्रिड बनता है, यस, इसमें दो एक्सिस, इंटरसेक्टिंग एक्सिस है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट्स द लीडर्स कंसर्न फॉर रिजल्ट्स और प्रोडक्शन ओरिएंटेशन, and the vertical axis represents the leaders concern for people. And each of the axes is drawn as a 9-point scale on which a score of 1 represents minimum concern and 9 represent maximum concern. जो ये ग्रिड बन रहा है 1 से 9 तक जाता है, और दोनों एक्सिस में 1 मिनिमम स्कोर है और 9 उसका मैक्सिमम कंसर्न को शो करता है। और इस तरह अगर आप इनकी वेरियस कॉम्बिनेशन वर्कआउट करने की कोशिश करें तो देयर आर अबाउट 81 डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स बनेंगे 9 के स्केल में। लेकिन इन्होंने 5 मेजर इंटरसेक्शंस को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, और वो है अथॉरिटी कंप्लायंस, राइट मोस्ट बॉटम जो है राइट पे, और कंट्री क्लब मैनेजमेंट 19, ये जो ऊपर टॉप लेफ्ट है 19, और इम्पोरिस्ड मैनेजमेंट 11 लेफ्ट बॉटम, और मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट जो दरमियान में है, एंड टीम मैनेजमेंट 9 जो राइट टॉप पर होते हैं। ये 5 लीडरशिप स्टाइल्स ब्लेक एंड मोर्टन ने दिए बेस्ड ऑन देयर मॉडल, जो 2 एक्सिस उन्होंने बनाए। तो इन 5 की हम थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। As far as 9-1 is concerned, ये जो राइट बॉटम वाला है, authority compliance. This places heavy emphasis on task and job requirement and less emphasis on people, except to the extent that people are tools for getting the job done. बस इंसान की उतनी ही इम्पोर्टेंस है कि जी इन्होंने काम करना है, अगर ये नहीं होंगे तो काम नहीं होगा, बस that's all. Otherwise they are basically concerned with the task and job requirements. Communicating with subordinates is not emphasized except for the purpose of giving instructions about the task. कोई emphasis नहीं है रिलेशनशिप के ऊपर, कोई बातचीत या कम्युनिकेशन नहीं है except where it is required to pass on the instructions. And the leader is mostly seen as controlling, demanding, hard driving and overpowering. जो हार्ड टास्क मास्टर टाइप लोग होते हैं, आर्मी में ये बड़ी टर्म यूज होती है कि दिखाना बड़ा हार्ड टास्क मास्टर है, तो बेसिकली दे आर अथॉरिटी कंप्लायंस। और दूसरा जो लीडरशिप स्टाइल है कंट्री क्लब मैनेजमेंट या 19 टॉप लेफ्ट कॉर्नर, this represents a low concern for task accomplishment but high concern for interpersonal relationship. ये बेसिकली रिलेशनशिप ओरिएंटेशन है, और टास्क को ये लोग इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते।
they de-emphasize the production, but they stress the attitude and feelings of the people, making sure the personal and social needs of people are met. They try to create a positive climate by being agreeable, eager to help, comforting, and uncontroversial. और जो लेफ्ट बॉटम है, impoverished leadership style या 1-1, इसमें the leaders are unconcerned with both. ये वो लाइसेंस फेयर टाइप लीडरशिप स्टाइल है जिसमें लीडर इंटरफेयर नहीं करता, ना कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, ना कोई रिलेशनशिप के हवाले से बात कर रहा होता है. And this type of leader goes through the motions of being a leader, but acts uninvolved and withdrawn. And this type of leader often has little contact with followers and could be described as indifferent, non-committal, resigned, and apathetic. जैसे वो लाइसेंस फेयर वाली बात होती है, अक्सर आप लोग समझते हैं. लेकिन कोई भी लीडर जो है ना वो परफेक्टली फिट नहीं होता है इन स्टाइल्स में. मतलब आप किसी लीडर को ऐसे नहीं कह सकेंगे कि जी ये बिल्कुल ही 1-1 है या 9-1 है या 9-9 है. कुछ दरमियान में ही होंगे, लेकिन ये एक्सट्रीम पोजीशंस एक्सप्लेन की जा रही हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग. अच्छा, और चौथा जो लीडरशिप स्टाइल है दैट इज मिडल ऑफ द रोड, 5-5 दरमियान में जो है. This style describes leaders who are compromisers, who have an intermediate concern for task and intermediate concern for the people who do the task. बहुत ज़्यादा ये आउटस्टैंडिंगली एम्फेसाइज किसी एक एस्पेक्ट को नहीं करते. बेसिकली ये कंप्रोमाइजर टाइप है, यानी गुजारा करने की कोशिश करते हैं. जितना ज़रूरी है उतना कंसर्न फॉर द टास्क शो करते हैं, जितना ज़रूरी है उतना कंसर्न फॉर द पीपल शो करते हैं, ज़्यादा नहीं. They find a balance between taking people into account and still emphasizing the work requirement. Their compromising style gives up some of the push for production and some of the attention to employee needs. ज़रूरी नहीं है कि जी एम्प्लॉइज की तमाम नीड्स को वो मीट करने की कोशिश करें. ज़रूरी जो होंगी उन पे बात कर लेंगे, जो गैर ज़रूरी है, ज़्यादा उनके काम से रिलेटेड नहीं है, उनको वो इग्नोर करेंगे. And to arrive at an equilibrium, the 5-5 leader avoids conflict and emphasizes moderate level of production and interpersonal relationship. वो ज़्यादा मिक्सिंग और ज़्यादा पुश नहीं करता, बस दरमियाना गुजारा करने की कोशिश करता है. And this type of leader often is described as one who is expedient, यानी गुजारा करने वाला. Prefers the middle ground. Extremes को अवॉइड करता है, बस दरमियान में रहता है. Soft paddles disengagement and swallows convictions in the interest of progress. लोगों को ज़्यादा पनिश नहीं करेगा अगर गुजारा चल रहा है, काम चल रहा है, कंपनी अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव सेटिस्फैक्टरीली अचीव कर रही है, बेशक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं भी है, तो वो ज़्यादा लोगों को तंग करने की कोशिश नहीं करता. और पांचवा स्टाइल है 9-9. आवाज आ रही है ना? जी सर, आवाज आ रही है बिल्कुल. इसको टीम मैनेजमेंट स्टाइल भी कहते हैं. और इस तरह का जो लीडर है, he or she places strong emphasis on both
tasks and interpersonal relationships, and they try to promote a high degree of participation and teamwork in the organization, and satisfies a basic need in employees to be involved and committed to their work. Uh, some of the phrases which can best describe this type of leadership style are stimulates participation, acts determined, gets issues into the open, makes priorities clear, follows through, behaves open-mindedly, and enjoys working. ये टीम मैनेजमेंट या 9-9 स्टाइल की कुछ डिस्क्रिप्टिव टर्म्स हैं। ये जो 5 लीडरशिप स्टाइल्स हमने डिस्क्राइब किए बेस्ड ऑन ब्लेक एंड मोर्टन्स लीडरशिप ग्रिड, उन्होंने 2 और भी स्टाइल्स की बात की है। अगली अगली स्लाइड पे चलेगा। पैटर्नलिज्म, oblique maternalism, and opportunism. आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। यस सर, आ रही है। ठीक है जी। पैटर्नलिज्म, अगली स्लाइड देखें। नहीं, आगे चले। ये तो डिस्क्राइब कर लिया। और आगे चलो, आगे चलो। नेक्स्ट, ये पैटर्नलिज्म में पिछली स्लाइड जी। जो 5 स्टाइल्स के अलावा ये 2 स्टाइल्स को उसने एक्सप्लेन किया। एक पैटर्नलिज्म है। This refers to a leader who uses both 1-9 and 9-1 styles but does not integrate the two. This is the benevolent dictator, जो रहमदिल बादशाह होते थे, उनको आप पैटर्नलिज्म या मैटर्नलिज्म कह सकते हैं। और इनके पास दोनों स्टाइल्स को ये यूज करते हैं, 1-9 को भी और 9-1 को भी। And they act graciously but does so for the purpose of goal accomplishment. वो बड़े रहमदिल बादशाह होते हैं, ग्रेशियस होते हैं, लेकिन मकसद उनका होता है पर्पस ऑफ गोल अकम्पलिशमेंट। अगर गोल अकम्पलिशमेंट नहीं होगी तो फिर वो ग्रेशियस एक्ट नहीं करेंगे। इन एसेंस द पैटर्नलिज्म style treats people as if they were dissociated from the task. Task से उनको dissociate करके, and these leaders are often described as fatherly or motherly toward their followers, regard the organization as a family, make most of the key decisions, and reward loyalty and obedience while punishing non-compliance. ठीक है, फादरली और मदरली स्टाइल है। इसमें लोगों को रिवार्ड किया जाता है इफ दे परफॉर्म, एंड पनिश किया जाता है एज फादर अगर वो नॉन कंप्लायंस या काम ना करें। और दूसरा है अपॉर्चुनिज्म। अगली स्लाइड पे जाए। This refers to a leader who uses any combination of the basic 5 styles for the purpose of personal advancements. थोड़ा सा ये नेगेटिव लीडरशिप स्टाइल है। मैं तो सोच रहा था कि इसकी बात ही नहीं करते, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, इसका
बताना चाहिए ताकि हम लोगों को इस स्टाइल को अवॉइड करने की के हवाले से बात कर सकें। जो है प्रोडक्शन ओरिएंटेशन, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन या कंसर्न फॉर पीपल है, ये उसमें से किसी एक चीज को भी एम्फेसाइज करते हैं या कोई एक कॉम्बिनेशन वो बनाते हैं, लेकिन बेसिक एम उनका होता है पर्सनल एडवांसमेंट। अगर वो समझते हैं कि लोगों को थपकी दे के मेरा फायदा होगा, मेरी प्रमोशन होगी, मुझे भी अप्रिसिएशन मिलेगी, तो वो लोगों को थपकी देना शुरू कर देंगे। अगर वो समझते हैं कि लोगों को कंसर्न फॉर ओरिएंटेड फॉर प्रोडक्शन ज्यादा हो, लोगों को खर्चा ज्यादा जाए, ज्यादा उनको पुश किया जाए, काम उससे ज्यादा लिया जाए, तो उससे मेरी एप्रिसिएशन होगी, तो वो उसकी तरफ उनका फोकस हो जाएगा। And an opportunistic leader will adapt and shift his or her leadership style to gain personal advantage, putting self-interest ahead of others' priorities. वो किसी एक स्टाइल के ऊपर परमानेंट नहीं रहते, बल्कि दे कीप मूविंग टू एंड फ्रो। जो भी चीज उनके फायदे में जा रही होती है उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। And both the performance and the effort of the leader are to realize personal gains. और कुछ टर्म्स जो इस लीडरशिप स्टाइल को एक्सप्लेन करने के लिए यूज की जा सकती हैं, they include ruthless, cunning, and self-motivated. While some could argue that these type of leaders are adaptable and strategic, जो इसको फॉलो करते हैं, जो इसके इसको इसको अप्रिशिएट करते हैं, वो थोड़ा सा पॉजिटिव टर्म्स यूज कर लेते हैं इस स्टाइल के लिए, अडेप्टेबल या फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रेटेजिक। तो बेसिकली उनका कंसर्न होता है पर्सनल एडवांसमेंट से रिलेटेड टास्क या रिलेशन, उनका एम नहीं होता। और जो इनकी कंक्लूजन्स हैं ब्लेक एंड मोटन के, they indicate that people usually have a dominating grid style and a backup style. Dominating grid style वो होता है, अगली स्लाइड पे जाएंगे। अच्छा, चले, दिस इज गुड कि हमने ये लेसन एज प्लान कर लिया है। तो इन्होंने ब्लेक एंड मोटन ने ये कहा था कि हर लीडर का एक डोमिनेटिंग स्टाइल होता है और एक बैकअप स्टाइल होता है। जो डोमिनेटिंग स्टाइल है, they use that style in most of the situations, और बैकअप स्टाइल है जो जब कभी कोई स्पेशल सिचुएशन हो, स्पेशल रिक्वायरमेंट हो, तो उस वक्त उसको एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो डोमिनेटिंग स्टाइल को फॉलो करेंगे। और अगर किसी वजह से वो बैकअप स्टाइल की तरफ जाते हैं, तो वो फॉरन डोमिनेटिंग स्टाइल के ऊपर वापस आ जाएंगे जो ही वो सिचुएशन खत्म होती है। तो ये जो लीडरशिप ट्रेड है ब्लेक एंड मोर्टन का, दिस इज practical, it's a perfect example of a practical model of leadership, and it's based on two major leadership behaviors, tasks and relationships, और क्लोजली रिजेंबल करता है ओहायो और मिशिगन स्टेट स्टडीज को। इट इज यूज्ड इन कंसल्टिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो कंपनीज को कंसल्टेंसी लोग प्रोवाइड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द लीडरशिप स्टाइल्स, वो इस मॉडल को बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। और
एनालिटिकल है, ऑल एनकम्पसिंग है, बड़ा डिटेल्ड है और बड़ी डिफरेंट किस्म की ये कॉम्बिनेशंस को एक्सप्लेन करता है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर ये 9 का स्केल फॉलो किया जाए तो टोटल 81 कॉम्बिनेशंस बनती हैं, जबकि जो दूसरी दो स्टडीज थी वायु और निशिगार वाली, वो दो दो की बात करती है। तो यहाँ एक वैरायटी है और प्रैक्टिकलिटी है। जी, एनी क्वेश्चन सो फार? जी सर, बस 3 मिनट्स रह गए इस मीटिंग में। अच्छा, क्वेश्चन सवाल है कोई? नो सर। जो सवाल करेगा वो अपना नाम भी बताए ताकि मुझे पता भी चले कि कौन जाग रहे हैं और कौन सो रहे हैं। सारे जाग रहे हैं? यस सर। यस सर। सारे जी सर। यस सर, वेरी गुड। इस सेशन में तो मेरे ख्याल में सही जा रही हैं सर। ओ बहुत अच्छे, आई एम रियली वेरी हैप्पी। तो इस सेशन में तो वाकई सब कुछ जागना चाहिए, बिकॉज दो ब्रेकें हो चुकी हैं और जो सब ने जो क्लास शुरू होने से पहले अगर किसी ने नाश्ता नहीं किया तो वो दूसरी ब्रेक पहली ब्रेक में कर लिया होगा, जिसने पहली ब्रेक में भी नहीं किया उसने दूसरी में कर लिया होगा, तो अभी तो सारे फ्रेश हैं फिर से।